مسلمان بھائیوں، آپ سے ایک سوال ہے کہ چاند کے تو دو ٹکڑے کر دیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب جنگ میں دو دانت ٹوٹ گئے تو کیا جو انگلیاں چاند کے دو ٹکڑے کر سکتی ہے تو کیا وہ انگلیاں ان کافروں کے پچھواڑے میں نہ کر میں ڈال کے اڑا دیتے چاند تک؟ ہم؟ کیوں نہیں کیا ایسا؟ پھر وہ میسائل کہاں گئی؟ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، کیسی بے غیرت بات ہے یار۔ کہیں اور بھی تو کسی اور نے بھی تو دیکھا ہوگا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ جب سوریہ گرہن ہوتا ہے تو اوروں کو بھی تو نظر آتا ہے، چندرما گرہن ہوتا ہے تو اوروں کو بھی تو نظر آتا ہے، خالی ایسا تھوڑی ایک ہی آدمی کو نظر آتا ہے، یا جتنوں کو دکھانا چاہے اتنوں کو نظر آتا ہے۔ اگر جتنوں کو دکھانا چاہ رہا ہے اتنوں کو ہی نظر آتا ہے تو بھائی ہمارے یہاں کا ایک مداری بھی گلا کاٹ کے دوبارہ سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ مداری ہے تو پھر چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے تو محمد صاحب نے ایک مداری والا کرتب دکھایا بس۔ تو وہ تو سعودی عرب میں، تو یہاں کیسے دکھے گا؟ اور لوگوں کو کیسے دکھے گا؟ سعودی کا چاند الگ الگ ہے کہ چلو کہہ سکتے ہو کہ عید بھی اگلے دن مناتے ہو تم، کیونکہ وہاں کا جو چاند ایک دن بعد میں نظر آتا، لیکن سعودی عرب کے کھاڑی دیشوں کے آس پاس کے تو یہ نظارے ہیں، وہاں پر تو اس دن چاند دکھ رہا ہوگا ہے۔ یہ تو اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں وہ چاند پہ نہیں گئے، اور کہتے پھر یہ کہتے سائنس تو کہہ رہی ہے آج کہ چاند میں درار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے اور وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں شہرت وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اوپر بھونکنا شروع کر دو۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ ایک مسلم تھے، آپ ایکس مسلم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا۔ فیمس ہونے کا طریقہ، دنیا جانے کہ ہاں کوئی آدمی ہے۔ اسلام کے اوپر بھوگنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنا، یہ ایک کام ہے لوگوں کا۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھا تھا، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ویڈیو میں کہ مسلمان بھائیوں تم سے ایک سوال ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بالکل کلیئر کر دیے۔ اس کا سوال ہے کہ چاند کے نبی نے دو ٹکڑے کر دیے، یہ تو حق ہے، سارا مسلمان مانتا ہے، اپنے آپ کو جو ایمان والا ہے وہ مانتا ہے۔ اب اس نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنایا، غور دیکھیے گا اس نے کس طریقے کا اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے حضور کے نام کو لیا۔ لیکن اب اس کی بے غیرتی، اس کی بے حیائی، اس کے اندر کے دل کے اندر جو میل ہے، غبض ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ اب آگے بول رہا ہے لیکن جب جنگ میں دو دانت ٹوٹ گئے تو کیا جو انگلی چاند کے دو ٹکڑے کر سکتی تھی؟ دیکھیے سوال کہاں کہ جب حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو جنگ میں جب نبی کے دو دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ انگلیاں جو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتی تھی وہ کیا کافروں کے پچھواڑے میں ڈال کر ان کافروں کو چاند تک نہیں لے جا سکتی تھی؟ کتنا گندا جملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی پاک اور مکے والے جو نبی کے دشمن تھے، جن کو میرے نبی دعا دیتے تھے، کبھی میرے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دعا دی، ہمیشہ دعا دیے۔ ان کے لیے کہہ رہا ہے گا جو لوگ نبی کے دندان مبارک کو جنہوں نے شہید کیا تھا، جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ کافروں کے پچھواڑے میں ڈال کر ان کو چاند تک نہیں لے آ سکتے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ کتنا بڑا گستاخ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جس آدمی کو بولنے کا شعور نہ ہو، جس آدمی کو گفتگو کرنے کا شعور نہ ہو، جس آدمی کو سمجھ اتنی نہ ہو، تو آدمی کیا سوال کرے گا؟ ایسے ہی لوگ انگریزوں کے ایجنٹ بنے تھے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے تھے، مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ آگے کہہ رہا ہے کیوں نہ کیا؟ ایسی میسائل کہاں گئی
जो हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो मिसाइल कहां है, कहां चली गई कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए। कैसी बेगैरत बात है। अब जुमला आप देखिए, कह रहा कैसी बेगैरत बात है। हुजूर की उंगलियों को मिसाइल कह रहा है कि मिसाइल से जो चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, उससे जो है उन काफिरों को सजा क्यों नहीं दी। कैसी बेगैरती की बात करते हैं मुसलमान, ये कह रहा है। किसी और ने भी देखा होगा, कह रहा है किसी और ने भी देखा होगा, जब चांद के 2 टुकड़े हुए हैं तो और लोगों ने भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और लोगों ने भी देखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा वहां मौजूद, सहाबियों का छोटा सा काफिला वहां मौजूद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14वीं रात का चांद चमक रहा है। आप जब काबे शरीफ से निकल करके सफा और मरवा के बीच वाले दरवाजे से निकल करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकान मुबारक की तरफ जाते हैं, यानी बाबुस्सलाम से निकलते हैं, हुजूर के मकान की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही बाबुस्सलाम से आगे बढ़ेंगे तो वो जगह भी हमें देखने को मिलती है जहां से खिड़की से बूढ़ी औरत जो है अपने मकान से कूड़ा डालती थी। अब जब उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो जगह मिलेगी जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी मुकद्दस बाबरकत जो है मकान मुबारक था, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब उससे जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसी जगह पर पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में रात के वक्त में मौजूद थे। शुरू रात थी, अबू जहल को मालूम हुआ कि हुजूर उस पहाड़ी पे गए हैं, तो अबू जहल भी अपने चंद साथियों को लेकर के वहां पर पहुंचा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अदब से सलाम किया, कहा कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। अपने चंद साथियों के साथ में हुजूर भी हैं और अबू जहल भी आया। कहने लगा अगर चांद के आप 2 टुकड़े कर दें तो मैं ईमान ले आऊंगा। ये नबी का मोजज़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी उंगली पाक को उठाया, चांद की तरफ इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। सहाबा ने भी देखा, अबू जहल ने भी देखा, अबू जहल के साथियों ने भी देखा। जब चांद के 2 टुकड़े हुए, चांद फटा, तो अबू जहल ये कह करके वहां से खुद चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, ये साहर हैं, और इन्होंने जादू के जरिए से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मैं इन पर ईमान नहीं लाऊं, ये कह करके चला गया। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उनके दिल की कैफियत बदल गई। पहला मोजज़ा ईमान लाने के बाद में जो सहाबा ने देखा था, तो वहां पर एक यादगार के तौर पर एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद हिलाल। सन 1988 तक की वो मस्जिद मौजूद रही, लेकिन सऊदी हुकूमत ने उसको सिर्फ इसलिए गिरा दिया, इसलिए शहीद कर दिया कि यहां पहाड़ी पर कोई जाता नहीं है, तो इसलिए मस्जिद का कोई मकसद नहीं। बहरहाल ये तो देखा गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करे। लेकिन अब आगे जो वो जुमले कह रहा है कि चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, तो उसको और लोग भी देखते हैं, औरों को भी नजर आता है। बिल्कुल मेरे भाई, लेकिन ये तो मामला जरूरी नहीं है कि अगर बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में अगर चांद ग्रहण हुआ है, तो ये जरूरी तो है ही नहीं कि गाजियाबाद में भी वो दिखाई दे चांद ग्रहण। और चलो ये भी बात माने ले रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये जरूरी तो है नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में चांद ग्रहण हुआ है तो पंजाब में भी लोग देखें, आसाम में भी देखें, बिहार में भी देखें, बंगाल में भी देखें। सूरज ग्रहण हुआ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, तो ये जरूरी तो है नहीं है कि यूपी में भी हो, ये जरूरी तो है नहीं कि हरियाणा में भी हो, पंजाब में भी हो, हिमाचल प्रदेश में भी हो। और यह भी जरूरी है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में दिख गया कि चांद ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि नेपाल में के लोगों ने देख लिया हो। जरूरी है
सूर्य ग्रहण जहां जहां तरक्की होता है, साइंस वाले आज बता रहे हैं, आज साइंस पैदा हुई है, मगर ये जरूरी नहीं कि अमेरिका में उसी टाइम पे हुआ हो, थाईलैंड में उसी वक्त पे हुआ हो, मिस्र में उसी वक्त पे हुआ हो, अमेरिका हो, लंदन हो, इराक हो, ईरान हो, मिस्र हो, जरूरी नहीं है कि भारत में अगर हो तो वो चीज सऊदी अरब में भी हो, या सऊदी अरब में हो तो यहां के लोगों ने भी देखा हो। बहरहाल ये चांद ग्रहण का मामला अलग है, चांद का टूटना अलग मामला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब चांद के 2 टुकड़े करे थे, तो हिंदुस्तान का एक बादशाह था जिसका नाम असद था, उसने भी अपनी आंखों से अपनी छत के ऊपर 14वीं शब का चांद देख रहा था, उसने भी अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने जिन जिन लोगों को तौफीक दी उन लोगों ने देखा, नबी के दुश्मनों ने भी देखा, नबी के वफादार सहाबा ने भी देखा। अब आगे उसने क्या कहा कि हमारे यहां मदारी वाला आता है, और मदारी वाला आने के बाद में वो करतब दिखाता है। करतब दिखाने में वो क्या करता है, किसी आदमी को लिया, उसका सर काट के अलग कर दिया, फिर उसको जो है सर में लगा दिया। किसी औरत का उसने सर का अलग कर दिया, तन से जुदा कर दिया, फिर उसके बाद में सर से लगा दिया। सही सलामत आदमी है, सही सलामत औरत है, तो ऐसा क्या करतब मोहम्मद अरबी ने दिखाया? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये करतब है, लेकिन वो नबी का मोजज़ा है। नबी के मोजज़े पर हमारा ईमान है, नबी के मोजज़े पे मुसलमान कुर्बान है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी ने फरमाया था कि सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, और गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। जिस आदमी की मैंने वीडियो दिखाई है, ऐसे ही लोगों को देख करके आला हजरत ने फरमाया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे फिर वो न मानेंगे कयामत में तू अगर मान गया, फिर वो न मानेंगे कयामत में तू अगर मान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ऐसा दिल क्या है जिसमें बुग़्ज़े रसूल हो, ऐसा दिल क्या है जिसके अंदर नफरत रसूल हो, ऐसा दिल क्या है कि जिसके अंदर जो है सिर्फ स्याही स्याही हो, बल्कि दिल वो दिल होना चाहिए जिसके अंदर इश्क़ रसूल के जलवे नजर आए। ऐसा दिल होना चाहिए जिसके अंदर इश्क़ रसूल की शम्मा जलती हुई नजर आए। ऐसा दिल होना चाहिए जो हुब्बे रसूल में तड़पे बेचैन रहे। ऐसा दिल होना चाहिए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा होने का जज्बा रखे। और ऐसा सर होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान होने का जज्बा रखे। मेरे भाई, इस तरीके से बकवास उड़ते रहे हैं, उड़ते रहेंगे। यहूद और नसारा थे जिन्होंने ऐसे लोगों को खरीदा था कि मुसलमानों की ताकत बढ़ती चली जा रही, सिर्फ उनके ईमान की वजह से। उनके अंदर इतने फन नहीं है कि वो हमें हरा सकें, इतनी सियासतदान नहीं है कि वो हमें हरा सकें, लेकिन इनका ईमान मजबूत है, इसलिए खुदा इनकी मदद करता है। इनके ईमान को खत्म करो। इसी तरीके से जो है एजेंट खरीदे गए थे, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया हैगा। ऐसे ही लोग जब आए हैं तो कुरान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे ही लोग जब आए हैं जब उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों से दिलों से निकालना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि जब हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत निकल गई, नबी की उल्फत निकल गई, तो हम किसी काम के न बचे। अल्लाह तबारक ताला इश्क़ रसूल के जलवे हमारे दिलों के अंदर मुज़य्यन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।